Good morning, students. In the last class we did about the very important part, that is nucleus, and before that we also done about cell wall, cell membrane, all these structures. So now we are moving on to the next important component of a cell, without which a cell is not called as a cell, that is called as cytoplasm. Okay. So we have on the very first page we looked out on the figure of the cell that is given, and the last class also we did about the cheek cells that we obtain from the cheeks. Okay, so we see that there is a dark colored portion in between the center of the cell, and we called it as the nucleus, and that dark colored portion is surrounded by a membrane which we call it as nuclear membrane, and then there is a second membrane that encloses the, or that defines the boundary of the cell. That membrane is called as the cell membrane, that we already studied. So what is the structure that is enclosed by the cell membrane? One is nucleus, and second part is called as the gel like fluid present in the cell, which is called as cytoplasm. Okay, and this region you have seen in the that figure also on the very first page, that the cytoplasm is very lightly stained. Nucleus is dark colored. Whenever you put an iodine drop, the nucleus is very dark colored. Cell membrane also you can see very dark colored, but in the space present between cell membrane and nucleus, there is a light colored fluid portion, and that fluid content present inside, fluid content or the gel like portion present inside the cell membrane, enclosed by the cell membrane, is called as the cytoplasm. Okay, so I am marking it here. This region takes up light stain, it is called as cytoplasm. And what is this region? This is the fluid content inside the plasma membrane. Okay, now it also contains various specialized cell organelles. Now what are these actually cell organelles? Let's first understand this. Cell organelles means smaller structures present inside cell that helps cell to perform various functions. Okay, so what are these? These are smaller structures present inside the cell that helps the cell to perform various functions. Okay, every cell organelle performs a particular specific function. Like for example, अभी आप आगे पढ़ोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप आगे पढ़ोगे गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. तो एवरी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वहाँ से हम उसको डिराइव कर सकते हैं. तो हेंस like mitochondria is just for ATP production, energy production. In the same manner, every different organelle has a specific function. Okay, now cell organelles are also enclosed by membranes, but there are certain cell organelles which are double membrane bound, like for example chloroplast, mitochondria. Then there are certain cell organelles which are single membrane bound. Okay, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, they are single membrane bound. And then there are cell ऑर्गेनेल्स विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल राइबोसोम. तो मैंने आपको तीनों का एग्जांपल दे दिया. सेल मेम्ब्रेन, देयर आर सेल ऑर्गेनेल्स, देयर आर 3 टाइप्स. वन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड. डबल मेम्ब्रेन बाउंड का एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. देन यू हैव सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस. देन यू हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज राइबोसोम. ओके, सो दैट मीन्स दैट एन ऑर्गेनेल इज ऑल्सो सराउंड बाय अ membrane. Then we are not calling it as a cell membrane. वो सेल की पूरी membrane नहीं है, वो ऑर्गेनेल की membrane है. So simply we will call it as the membrane. Okay. अब अगर हमारे पास हमने दो तरीके के सेल्स हमने पढ़े, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक सेल्स मतलब एडवांस न्यूक्लियस. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. ठीक है, इट इज़ फ्लोइंग इन द साइटोप्लाज्म एज सच. वहाँ पे कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियस की, तो हम उसको वहाँ पे नाम देते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, इज इट क्लियर? हेंस प्रोकैरियोट्स में एक और चीज़ एब्सेंट होती है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और सेल ऑर्गेनेल्स के पास भी वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है.
या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे हम सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, वहाँ तो सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो यस, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में हमको मिलते हैं। आई रिपीट, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ओके, एंड इट ऑल्सो लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे गोल्गी एपिटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ नहीं होता, ओके। देन द क्वेश्चन अराइजेज कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो एब्सेंट है, तो क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसका आपको एग्जांपल मैंने राइबोसोम दिया, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके, वी विल ऑल्सो स्टडी लेटर। अब आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, दैट इज ribosomes is a non-membrane, chloroplast, mitochondria, these all are membrane bound organelles which are also present in a eukaryotic cell, okay। अब इस हम आगे चलते हैं, वायरसेस का एग्जांपल लेते हैं। वायरसेस के केस में आई एम मार्किंग इट आउट, वायरसेस के केस में वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग है और इनसाइड द बॉडी लिविंग है, ठीक है। तो वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम आउटसाइड द बॉडी उसको नॉन लिविंग बोलते हैं, और इनसाइड द बॉडी जब वो होस्ट की बॉडी में चली जाती है, जैसे कोरोना वायरस आउटसाइड द बॉडी इज़ नॉन लिविंग, ठीक है, बट जैसे ही वो वायरस बॉडी में एंट्री करता है, वो होस्ट की मशीनरी, होस्ट मतलब जिस बॉडी में वो जाएगा, उसकी मशीनरी को यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करता है, ओके। तो दिस शोज़ यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ओके। चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आपको दिया हुआ है। यूकैरियोटिक सेल में आपको लिखा न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड it is not surrounded by any membrane and it is known as nucleoid. Okay, I am repeating, nuclear region not well defined in case of prokaryotic and not surrounded by any membrane and it is known as nucleoid, NUCLEOID. Okay, second third point आपको डिफरेंस दिया हुआ है. there is a single chromosome in all prokaryotic cells, there is only single chromosome. ठीक है, but in all eukaryotic cells we have more than one chromosome. Like in human body we have how many chromosomes? We have 46 chromosomes present in our body. Okay, then membrane bound cell organelles absent. तो यहाँ पे आप लिखोगे membrane bound as well as non membrane bound cell organelles are present. I repeat, membrane bound as well as non membrane bound cell organelles are present. Okay, so let's move on to the cell organelles part. सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पीछे अभी पढ़ लिया. होते क्या हैं? दे आर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प द सेल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. ओके, यहाँ पे आप एक बार इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं. एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी शुरू हो जाती है. क्या होता है? वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में, फंक्शन में उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है. ठीक है, तो इन सब एक्टिविटीज़ को, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमको अलग अलग करना पड़ेगा. अब अगर मैं बोलता हूँ मुझे एटीपी बनाना है तो मैं बोलूँगा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है. मैं अगर बोलता हूँ मुझे खाना बनाना है तो क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है. हेंस वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए क्या किया सेल ने अपने अंदर इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए
छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लिए. दीज स्ट्रक्चर्स आर कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड और कैन बी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, एंड दीज स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, आर कॉल्ड एज ऑर्गेनील्स. ठीक है, ऑर्गेनील्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रक्चर, ऑर्गन से भी छोटा. ठीक है, तो यहाँ से आप उसको मार्क करो, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ. जितनी भी एक्टिविटीज़ एक कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए सेल क्या यूज़ करता है? मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनील्स विद इन देमसेल्व्स. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जो कि उसको प्रोकैरियोटिक सेल से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स बड़े होते हैं जो हमको विजिबल हो जाते हैं ईजिली. कुछ ऑर्गेनेल्स बहुत छोटे होते हैं जो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कि सबसे एडवांस्ड, वन ऑफ द एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, उससे हमको दिखता है. ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऑर्गेनेल्स के आपको यहाँ पे नाम दिए हैं, जिसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. दे ऑल कैरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फंक्शन इन द सेल. ओके, तो दीज आर द स्टार्टिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. सबसे पहले हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पहले हम समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्चुअल मीनिंग क्या है. एंडो मतलब होता है इनसाइड. एंडो मीन्स इनसाइड. ठीक है, किसके इनसाइड? इनसाइड प्लाज्मा. इनसाइड प्लाज्मा. तो पूरा वर्ड का मीनिंग क्या बन गया? एंडो मीन्स इनसाइड एंड प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म. ओके, क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम मीन्स फाइबर लाइक, और यू कैन से एक टिब्यूल्स लाइक, ट्यूब्स लाइक या टिब्यूल्स लाइक. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या हो गया? साइटोप्लाज्म में जो फाइबर लाइक या टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हमको सेल के अंदर मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं. ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन सी हियर, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, यहाँ लिखा है स्मूथ, यहाँ लिखा है रफ, उसकी बात हम करेंगे. न्यूक्लियस के आसपास हमेशा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा मिलता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, अंदर की तरफ से बनता है हमेशा, फिर जाएगा किधर? सेल मेम्ब्रेन की तरफ. मैं रिपीट करता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन कहाँ से होगा? फ्रॉम द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखा हमको? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्स एंड शीट्स. इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट है, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था इसका. और शीट्स के फॉर्म में लंबी लंबी ट्यूब्स होंगी या फिर छोटी छोटी शीट्स. ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. ऑब्लॉन्ग मतलब एक एग शेप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वेजाइकल, छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं एग शेप जैसा, दिस इज वेजाइकल. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन एग्जैक्टली सेम होती है स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन के. इसलिए मैंने बोला आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होती है और सेल मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ हो सकती है, नहीं भी करेगी तो भी चलेगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर फिगर को ध्यान से देखते हो तो फिगर में आपको दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहे हैं. एक मिल रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपको मिल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स, जो कि उसकी सरफेस पे लग जाते हैं. ठीक, सरफेस पे लग जाते हैं तो हमको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसा दिखते हैं, हेंस हम उसको बोल देते हैं इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंड वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे, जिसकी वजह से वो RER बन गया, उसका काम क्या होता है? दे आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर आपसे पूछेंगे RER का फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? RER परफॉर्म्स प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, एंड देन दीज प्रोटीन्स आर सेंड टू वेरियस पार्ट्स. जैसा रिक्वायरमेंट है सेल को, वैसे वैसे प्रोटीन वहाँ पे पहुँच जाता है. ठीक है, अब हम चलते हैं SER के ऊपर.
SCR इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। तो पहला डिफरेंस आपके पास आ गया RER SCR में। RER में रफ होता है, SCR स्मूथ होता है। RER रफ क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, ठीक है। एंड SCR स्मूथ क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस but SCR helps in the manufacture of fat molecules or lipids that are important for cell function, ठीक है। तो मैंने मार्क कर दिया, these three are the major differences, okay, समझ में आया। now since SCR और RER मिलके क्या बना रहा है? प्रोटीन और लिपिड। और अगर हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द लिपिड एंड द प्रोटीन, it is the lipid and the protein that helps in the formation of membrane। membrane किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन को मिला के। तो लिपिड और प्रोटीन बना कौन रहा है? RER। hence RER and SCR both, hence endoplasmic reticulum helps in membrane biogenesis। membrane biogenesis, membrane को किसकी membrane को बना रहा है? एक बायोलॉजिकल सेल की मेम्ब्रेन को जनरेट कर रहा है। जेनेसिस मतलब जनरेशन करना, तो हेंस हमने बोल दिया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। सम आर एंजाइम, सम आर हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में अलग अलग स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा एक नेटवर्क के फॉर्म में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ओके। तो सॉरी, हम आगे आ गए, ठीक है। Thus one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between regions of the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्या करता है ER? ER ने जो प्रोटीन बनाया वो क्या कर सकता है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को भी दे सकता है, या फिर विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे कर पाता है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ चैनल्स। चैनल्स है तो एक जो पाइप हमारे घर पे पानी का होता है वो क्या है? एक चैनल ही तो है, एक जगह से पानी को दूसरी जगह भेज रहा है। इन द सेम मैनर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ फॉर्म ऑफ अ चैनल, जो कि एक जगह जो प्रोटीन बना उसको कहीं और साइटोप्लाज्म के अंदर ही या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भेज सकता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ER also functions as a cytoplasmic framework। It also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities। मतलब बहुत सारे reactions के लिए ये एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर ही वो reactions चलते हैं। जैसे प्रोटीन बन रहा है तो वो इसके अंदर बन रहा है, लिपिड बन रहा है तो इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। Then last and the most important function, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। ये सिर्फ SCR का फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल है, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। जो भी ड्रग्स आपकी बॉडी में आपने मेडिसिन लिया, काम का नहीं है, वेस्ट है, टॉक्सिक हो जाएगा, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सेल के बाहर निकालेगा, सेल के बाहर वो कैसे जाएगा? यूरिन के थ्रू चला जाएगा। तो आपने 3 फंक्शन पढ़े अभी इस लास्ट पैराग्राफ में। ER फंक्शंस एज टिब्यूल्स, टिब्यूल्स के फॉर्म में होता है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को हेल्प करेगा, ठीक है, विद इन द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उसके लिए एक सरफेस जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड, जो कि सिर्फ SCR का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक मटेरियल को निकालेगा और काम की चीज़ रख लेगा, टॉक्सिक मटेरियल को निकाल के बाहर भेज देगा, ओके। आज हमने 3 चीज़ें कर ली। हमने साइटोप्लाज्म किया, हमने सेल ऑर्गेनेल्स किया, और सेल ऑर्गेनेल का सबसे पहला पार्ट हमने किया, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। So children, start learning this chapter because this chapter is about to finish in a 2-hour class, and as soon as it finishes I will start taking your test. So please start learning this chapter
एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने लर्न किया होगा अभी तक, बहुत अच्छा है, नहीं किया तो लर्न करो, जो इसमें क्वेश्चंस बीच बीच में दिए हैं उनको लिखो एक नोटबुक में। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।